फ्रेंड्स। आज लेक्चर नंबर 4 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है और उसमें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये हमारे टॉपिक का उन्वान है, तो शुरू करते हैं टॉपिक। एक एग्जांपल है कि मैं समझाता हूँ, उसके बाद आपको रूल्स पता चल जाएंगे भाई कौन से रूल्स हैं जिनके ज़रिए इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में रूल्स पूछ लेते हैं, बाज़ औक़ात इक्वेशन दे देते हैं, बाज़ औक़ात बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन दे देते हैं या फिर रूल्स दे देते हैं। रूल्स साथ साथ एक इक्वेशन की मदद से आपको सारे रूल्स का पता चल जाएगा। वो एक ऐसी इक्वेशन है जिसके ज़रिए तकरीबन रूल्स का पता चल जाता है ऑलमोस्ट। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक रिडॉक्स इक्वेशन है। इस रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है। कौन से मेथड से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो लेट अस बैलेंस दिस redox equation by oxidation number method. You will understand the rules one by one, step by step. So first rule is to write the oxidation numbers on top of each element in the given compound in the equation, in a molecule or ion or any species. This is called skeleton equation. First rule is to write down the skeleton equation. First rule is to write down the skeleton equation. Second rule is to write down the oxidation numbers on top of all the elements involved in the equation. On top of all the elements involved in the equation. So let us start by writing their oxidation numbers. You understand the topic oxidation numbers of the elements. We studied that topic previously, and in that topic we discussed rules of concerning the oxidation numbers of the elements. दोबारा हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। कॉपर प्लस HNO3, इसका थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लिखें। उसके बाद CuNO3 whole twice plus NO plus H2O। अब हम क्या कर
करते हैं भाई इन एलिमेंट्स के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। कॉपर फ्री स्टेट में है, अकॉर्डिंग टू रूल फ्री स्टेट में एलिमेंट हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज 0। In this case, hydrogen is involved. आपने पढ़ा, we learned that hydrogen is one positive in all the compounds except the metal hydrides. So this is not a metal hydride. So hydrogen is one positive here. In case of oxygen, we learned that oxygen is 2 negative in most of the compounds except peroxides, superoxides and FO2. Now this is not none of those peroxides, superoxides or FO2. This is a different compound. So in this case, oxygen is 2 negative. Oxygen is 2 negative. 2 negative into 3. There are 3 atoms, so multiply by 3. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मालूम हो जाएगी जब, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो होता है वो 0 होता है। हमने पढ़ा था sum of oxidation numbers of all the elements in a given compound is equal to 0. This is 6 negative, this is 1 positive. So this should be their difference is 5 negative. So this should be 5 positive. This and this. If solved, you get 5 negative. So this should be 5 positive in order to get 0. In order to cancel out. तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 5 पॉजिटिव है। In this case, again multiply 2 से हो रहा है। 2 negative into 3. This is into 2 again. This is, in this case, it is 5 positive. Actually, in case of a nitrate, nitric acid contains a nitrate. In case of a nitrate, the oxidation state of nitrogen is 5 positive. Remember, always remember that in case of HNO3 or any NO3 containing compound, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 5 positive into 2, this 2 multiply by this 2, 5 positive into 2, this is 10 positive, this is 6 negative into 2, 12 negative. 12 negative. If these two are solved, we get 2 negative. So this should be 2 positive. In the same way, you will write the oxidation states on top of all the elements according to rules studied before. यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन क्या है 2 पॉजिटिव।
अगर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है तो नाइट्रोजन डेफिनेटली क्या होगी 2 पॉजिटिव, क्योंकि इनको जमा करो तो 0 होना चाहिए। Sum of oxidation states is equal to 0. Sum of oxidation states of all the elements in a given compound is equal to 0. This is 2 positive, this is 2 negative. So this was our second rule. You studied 2 rules. First rule is that write down the skeleton equation first. Write down the skeleton equation first. Second rule is that write down the oxidation numbers of all the elements involved in the given equation. आपने तमाम एलिमेंट के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। 2 रूल हो गए। पहला रूल स्केलेटन इक्वेशन लिखो। दूसरा रूल तमाम एलिमेंट के टॉप पर ऑक्सीडेशन नंबर्स नोट करो और हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नोट करना है, चाहे जो भी है, दोनों तरफ, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तीसरा indicate, third rule, indicate the change in the oxidation number during the process, during the reaction, during the chemical reaction. Indicate the change that proceeded during this process. देखते हैं कौन सी चेंज हुई है। कॉपर जीरो से किस में चेंज हुआ है? 2 पॉजिटिव में। कॉपर जीरो चेंज्ड from 0 to 2 positive. So this is a change. This is increase. 0 to 2 positive is increase. Increase in oxidation number is called oxidation. You already know that because you studied that before. उसके बाद नाइट्रोजन 5 पॉजिटिव है यहाँ पे नाइट्रोजन 5 पॉजिटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 5 पॉजिटिव है, इन दोनों जगहों पे नाइट्रोजन 5 पॉजिटिव है। लेकिन इस जगह पे नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव है, फिर क्या करें? उसका सॉल्यूशन ये है कि एक बार फिर नाइट्रिक एसिड को देखिए, यहाँ पर HNO3 5 पॉजिटिव, तो एक बार फिर हमने नाइट्रिक एसिड को लिख दिया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, इधर जो नाइट्रिक एसिड लिखा है HNO3, यहाँ पे 5 पॉजिटिव सिर्फ लिख दें, क्योंकि अब हमने चेंज नोट करनी है। 5 पॉजिटिव प्लस कॉपर 0 प्लस HNO3 को ऐसे ही लिख दें, ये एक HNO3 को CuNO3 और twice 2 positive plus NO 2 positive 2 negative plus H2O. Nitrogen changed from 5 positive to 2 positive. Oxidation number of copper changed to 2 positive.
0 to 2 positive. This is increase. On the other hand, nitrogen 5 positive to nitrogen 2 positive is a decrease in oxidation number. Increase in oxidation number is called oxidation. Decrease in oxidation number is called reduction. So in this step, you need to know is to write down the change, indicate the change. There are two changes. One is oxidation, other is reduction. This is oxidation and this is reduction. Now indicate the number of electrons lost and number of electrons gained by the species. जिस तरह कॉपर 0 से कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ है तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स -2 electrons, loss of 2 electrons, and this is 5 positive to 2 positive, gain of 3 electrons. इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन. क्या करना चाहिए? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से, in order to equate the loss and gain of electrons. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है. ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिडक्शन. जितना रेडॉक्स में यही होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है. तो redox reaction is a reaction in which the electrons are lost by one species and gained by the other species, and there is loss and gain of electrons during the process simultaneously. Therefore it is called a redox reaction, reduction plus oxidation. तो हमने क्या किया कि चेंज इंडिकेट की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम निकाल लिया. एक को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वल हो जाएंगी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अब कितने हैं और गेन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड. इसलिए हमने इनको बैलेंस किया ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा. अगले स्टेप में लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में जिन जिन नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर
से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 लगाएंगे और यहाँ पे 3 लगाएंगे, यानी 3 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ओके। उसके बाद यहाँ HNO3 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको बात समझ आ गई होगी भाई क्या चीज, मॉलिक्यूल को कैसे बैलेंस करना है, या आयनिक स्पीशीज है तो उसको कैसे बैलेंस करना है। तो ये हमने बैलेंस कर दिया। अब नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। Let us try now the hit and trial method to explain, to then balance the overall equation. First, we needed to balance the equation according to oxidation number method, which is because without which equation cannot be balanced. ये हो गया डन, ये हो गया डन हो गया, ये हो गया डन हो गया, ये हो गया डन हो गया। इनको आपने नहीं छेड़ना, इन दोनों इनको आपने नहीं छेड़ना। आपने किसको छेड़ना है, इस HNO3 को छेड़ना है और वाटर को छेड़ना है, बस। अब इनको मल्टीप्लाई करना बाकी है। कितना आसान हो गया है। इक्वेशन has become very easy now, easy to balance. Remaining molecules need to be multiplied by some numbers. और वो सिर्फ HNO3 और H2 और रह गए हैं। एक HNO3 को हमने कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम करते हैं, अब आप इस साइड पे नाइट्रोजन देख लें। नाइट्रेट को बैलेंस कर, नाइट्रिक एसिड को बैलेंस करना है तो इसमें नाइट्रोजन है, जड़ से पकड़े उसको। नाइट्रिक एसिड है तो उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए। तो पहले हम इस साइड वाली नाइट्रोजन, क्योंकि इस साइड वाली नाइट्रोजन बैलेंस हो चुकी है, देखें ये भी बैलेंस हो चुका है, ये भी बैलेंस हो चुका है। इस साइड वाली नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, तो इस साइड वाली नाइट्रोजन काउंट करते हैं और इस नाइट्रिक एसिड को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो नंबर हासिल होता है। तो लेट अस काउंट, इधर 2 से यहां मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से यहां 6 नाइट्रोजन है यहां पे, और ये 2 नाइट्रोजन है, 8 नाइट्रोजन है यहां पे। सिक्स नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन, 8 नाइट्रोजन यहाँ पे इतने हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 नाइट्रोजन पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे एक बार फिर देख लें, 3 नाइट्रोजन इंटू 2
6 nitrogen and 2 nitrogen, 8 nitrogen. Right side of equation has 8 nitrogen, so left side of equation must also have 8 nitrogen. 6 nitrogen here, 2 nitrogen here, so एक total 8 nitrogen. अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो गई है हीट एंड ट्रायल मेथड से। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करना बाकी है। इधर हाइड्रोजन काउंट, जब जब वाटर को बैलेंस करना होगा हाइड्रोजन को काउंट करें। आसान तरीका है, क्योंकि एक साइड पे हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी होती है, तो हाइड्रोजन काउंट कर लें। इस साइड वाली हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो उस साइड वाला वाटर बैलेंस हो जाएगा। तो काउंट करते हैं, 6 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। 8 hydrogen, it means you have to multiply this by 4, 4 to the 8। तो इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो गई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हमने रूल्स भी समझ लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के, हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। एक आध और इक्वेशन मैं बैलेंस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें मैं तेजी से बैलेंस करूंगा। उसमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार समझाने की, उसमें सिर्फ मैं रूल्स को फॉलो करके बैलेंस करके आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।